I'm Divyanshu. Divyanshu. Hi, Divyanshu. How are you? What, ma'am? I said, how are you? How are you? Fine, ma'am. Yeah. So basically, we had a few latecomers for this session. So we'll be starting the full session by next week or in a few days because a lot of people just paid up. So they needed some time to schedule their classes and everything. So what I'm going to talk to you about is like an introduction of what all is going to happen in your course today. Okay. And how the next few weeks of your course are going to be. All right. So, Mehnaj is a basically like we deal in technology based software and technology based learning. So there are basically like two domains that we are in. Just like 1 second. Yeah. So what we aim to do is we aim to digitize businesses at an affordable cost. So because you would see in your everyday life that if a business does not have a website, we immediately just say, okay, it's not worth anything. Like how could they not even have a website? So it's very important these days now to have a website, to have a digital page, to have your digital card, so that if somebody wants to buy something from you, somebody wants to engage with you, they can do that easily, right? So Mehnaj has the goal of digitizing your businesses plus helping empower your businesses and your employees. So we want to empower the youth to work in businesses, to uh, uh, make them more accessible to everyone, and also help the existing employees become more sorry become more technology efficient. Okay, if that's the word you will use. So we do this through two ways. A, we develop your software and your website. We make your digital marketing agendas, we promote your websites, we bring it to the people. Secondly, we ensure there is e-learning. So basically there is I'll speak about, there are two kinds of learning. There is a software open there is a classroom program and there is an online program. Are you comfortable with English or should I speak in Hindi? Yes, ma'am, I told you. Uh, I speak Uh-huh. little, understand little. Okay, should I speak in Hindi? Yes. हाँ, ओके ओके. सो बेसिकली मेहनाज क्या है ना, हमारे दो एस्पेक्ट्स हैं. हम सॉफ्टवेयर के साथ डील करते हैं. एक तो फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट, बैक एंड ऑफ द वेबसाइट, ठीक है. दूसरा हम ई लर्निंग के साथ डील करते हैं. हम लोगों को सिखाते हैं कि उनको अपनी वेबसाइट कैसे मेंटेन करनी है, वो किस किस एरिया में एक्सपैंड कर सकते हैं. एंड इफ देयर आर न्यू ग्रेजुएट्स, जो नए नए बच्चे आए हैं जिनको नहीं आता ये सब करना, वी टीच देम कि ये कैसे किया जाता है. ठीक है. देन सेकेंडली, हाँ, सो देर आर दो तरीके की लर्निंग होती है. एक ऑनलाइन लर्निंग होती है और ऑफलाइन लर्निंग होती है. हम ऑनलाइन लर्निंग में डील करते हैं, ऑफलाइन लर्निंग में नहीं डील करते हैं. ऑफलाइन लर्निंग क्या होता है आपको पता है? क्लासरूम लर्निंग होता है. आप क्लासरूम में जाते हैं और वहां पे आप जाके पढ़ते हैं, आपको पढ़ाया जाता है. ऑनलाइन में हम आपको सब थ्रू वेब करवाएंगे. सो हमारे पास व्हाइट बोर्ड होगा, हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज होंगी, हम एक्सरसाइजेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग विल बी डन ऑनलाइन. सो इससे क्या होता है ना, एक तो हम सबको पढ़ा सकते हैं. मतलब किसी भी एरिया में आप हो, चाहे आप सीतापुर में हो या आप झांसी में हो या आप बॉम्बे में हो, हम दिल्ली से बैठ के सबको पढ़ा सकते हैं. बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. दूसरा ये कि सबका टाइम बहुत बचता है. आपका टाइम बहुत बचता है क्योंकि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, फालतू में ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ता. हमारा टाइम बहुत बचता है क्योंकि हमको भी यही काम नहीं करना पड़ता है. एंड प्लस जो चीज हम आपको ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वो सेम चीज हम आपको ऑनलाइन में पढ़ा सकते हैं. ठीक है. एंगेजमेंट का टाइम हमारे पास ज्यादा बचता है. अब जो कोर्सेज हम करवाते हैं वो है फुल स्टैक डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, मशीन लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए ऑप्ट किया है. फुल स्टैक डेवलपमेंट बेसिकली होता है वेबसाइट डेवलपमेंट, राइट? कि आप बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों डेवलप करोगे, उसका मेंटेनेंस देखोगे, वेबसाइट देखोगे कि आप जो भी है ई कॉमर्स की वेबसाइट है या फिर सर्च इंजन है, क्या है, ऑल ऑफ दिस दैट इज इंक्लूडेड देयर. ओके. बिकॉज आप हर वेबसाइट पे देखोगे, जो भी वेबसाइट होती है एक ऑप्शन होता है ना, गूगल सर्च हियर. सो सर्च इंजन प्लस ई कॉमर्स है.
राइट। सो सारी चीजें होती हैं साथ मिलके, दिस इज कॉल्ड फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है। एआई क्या होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम बनाते हैं जो प्रिडिक्ट करता है कि अब यूजर को हमको क्या दिखाना है। तो आपने कभी नेटफ्लिक्स या amazon यूज करा है? यस मैम। हाँ। सो नेटफ्लिक्स, जब आप amazon पे कुछ ऑर्डर करते हो या नेटफ्लिक्स पे कुछ देखते हो, तो वो अगला आपको ऑप्शन देता है ना कि नेक्स्ट यू शुड वॉच दिस या नेक्स्ट यू शुड बाय दिस, है ना, क्योंकि वो आपका पैटर्न प्रिडिक्ट करता है, सजेशन देता है। एग्जैक्टली। सो एआई हमको सजेशंस देता है, एआई हमको प्रिडिक्ट करता है कि हमारा पैटर्न क्या होगा, हमें अगला अपने कंज्यूमर को क्या देना चाहिए। ठीक है। ये बहुत सारी चीजों के थ्रू किया जा सकता है। एआई चैटबॉट्स में भी यूज होता है। जो चैटबॉट्स हम यूज करते हैं जैसे एलेक्सा हो गया, आपका सिरी हो गया, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करते हैं कि हमने एक क्वेश्चन पूछा तो रिस्पॉन्स क्या देनी है ना, वो प्रिडिक्ट करती हैं चीजें। सो दे हैव कैच फ्रेजेस कि हाउ पूछा तो क्या जवाब देना है, व्हाट पूछा तो क्या जवाब देना है। देन यू हैव डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या होता है, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग थोड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है। डेटा साइंस थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड होता है, मशीन लर्निंग थोड़ा एडवांस्ड होता है। मशीन लर्निंग क्या करता है, बहुत सारे फैक्टर्स ले लेता है, इंटरमिंगल करता है उनको, लाइक यू नो नेटवर्क के थ्रू, जैसे एक नेटवर्क बना देता है और प्रिडिक्शन देता है कि भाई अगले महीने आपकी सेल्स इतनी होगी। डेटा साइंस थोड़ा सिंपल काम करता है, हमने बता दिया पिछले महीने कितनी सेल्स थी, हमने बता दिया क्या क्या प्रोडक्ट बेचा, तो वो आपको प्रिडिक्ट करके बताता है कि अगले महीने आपकी इतनी पॉसिबिलिटी है, आप इतना प्रोडक्ट ये वाला बेच सकते हो इस कॉस्ट रेंज में, जो भी हम उससे पूछे। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग नाउ अगेन, अभी तक आपको समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं नो मैम। है ना? तो डिजिटल मार्केटिंग तो आपको पता ही होगा, आप एडवर्टाइजमेंट्स रोज देखते होगे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, है ना? सो सोशल, ये जो आप एडवर्टाइजमेंट सब देखते हो ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। एक तो पेड एडवर्टाइजमेंट होता है जो आप जनरली देखते हो, दूसरा होता है हम ब्लॉग्स कर सकते हैं। इज ही हियर? हाँ। दूसरा होता है हम ब्लॉग्स कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं, आपकी सर्च वर्ड्स हैं, उन सर्च वर्ड्स को लेके हम आर्टिकल्स बनाते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसके थ्रू पीपल गेट टू नो अबाउट थिंग्स। ठीक है। वीडियो के थ्रू करते हैं, मोबाइल के थ्रू करते हैं, पुश मैसेजेस करते हैं, ये सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है। ठीक है। सो आपने एक वेबसाइट बनाया, सिर्फ वेबसाइट बनाना काफी नहीं है, उसको प्रमोट भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारी सेल्स कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, देखना पड़ेगा कि अगला हम कस्टमर को क्या दें, है ना? और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज बेसिकली लाइक जो बच्चे बहुत ज्यादा लाइक एक्सपोजर से नहीं आते हैं, उनको हम बताते हैं कि क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, जॉब में कैसे जाना है, आपको इंटरव्यू में क्या बोलना है। तो वो सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एस्पेक्ट होता है। अब यहाँ पे हम फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि अगले 8 हफ्तों में आप क्या क्या पढ़ेंगे। सो आपको हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स करवाएंगे, आप एक बार ये देख लीजिए। अगर आपको कुछ भी इसमें इश्यू हो या कोई भी क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहें इन कॉन्सेप्ट्स में। Hello. हेलो। हाँ Hello. दिव्यांशु। हेलो। Yeah, I actually heard the call. Yeah, अच्छा, इज नॉट इन द कॉल। I don't think so. He's not responding. एक मिनट देखना, पार्टिसिपेंट काउंट देखना, पता चल जाएगा। Yeah, he's there, but he isn't responding. He's showing the laptop scan over there. हाँ। हेलो। हेलो। Hello. Yeah, are you back? हेलो। हेलो। यस मैम। Yeah, I was asking you that I shared what you'll be doing in class. If anybody, like, you know, if you have a question, or Manya, you have a question, if there's anything that you don't understand, anything have to ask about the class module, you can ask now.
Okay, now hi Divyanshu, it's Ishita No, ma'am, Arora no this side. question. Hello, no questions? Okay, so I'll hand it over to Ishita. Ishita, you can take the presentation forward. Yeah. Yep. Okay. The class module side, you've explained about already, right? Class module I've explained. Yeah, I mean, yeah, so I've explained Okay. everything about the course. You can go forward with, like, the rest of the slides from slide 9. Okay. Yeah. Yeah. So hi everyone. This is Ishita Arora this side, and as you know, we'll be discussing about the classes and how are the classes going to take place, and what will be the details of the courses that you finally have decided to go through. So first of all these classes which we are planning for your respective courses, they are going to be conducted for over near about 2 months or so, depending upon if anything, if the classes get conducted according to the time and everything, they'll be approximately 2 months, and there will be no classes on Saturdays, and around 45 minutes to 1 hour is the time period for the particular class, and 3 to 4 classes will be occurring in a week. And so now first of all we should start off with the website thing. So basically, what is a website? A website is nothing but anything which you browse or search for a related product, or or related to anything which you need to see. You need to gather information, you need to find something or discover something. So anything related to shopping or anything, you can easily get on a website any information on the product or anything. Ma'am, It is just a Ishita, Mhm. can you continue in Hindi, please? Hindi. Yeah, okay, I Yeah. just forgot. Yeah, it's okay. Okay. It's okay. So basically अभी आपकी जो classes होंगी they will be for around 2 months. इतना I hope आपको समझ में आ गया होगा. So 2 months की आपकी classes होंगी, and आपको 3 to 4 classes conduct की जाएंगी आपकी एक week में. 45 minutes से या फिर 1 hour की आपकी एक class हो सकती है, and there will be no classes on Saturdays. Classes आपकी Sunday को होंगी. Time generally आपका 6 p.m. to 8 p.m. रहेगा, depending upon the tutors and everything. So we shall start about what is a website. वेबसाइट जब भी आप कुछ सर्च करना चाहते हो, कुछ ब्राउज करते हो, या आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी चीज से रिलेटेड चाहिए होती है, या आपको शॉपिंग करनी है, या फिर आपको जनरली किसी XYZ बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से छोटी चीज के बारे में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इट इज अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट. एंड उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक तक, यूजर्स तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट इज द मीडियम. आप ऐसे ही रैंडमली कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे मतलब आप नहीं कर सकते. यू जस्ट नीड अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म विच इज अ वेबसाइट. सो एक तरह से पूरा कलेक्शन है, आपको हर एक चीज का जो भी आपको इंटरनेट पे चाहिए होती है, एंड इंटरनेट पे आप ढूंढना चाहते हो रिलेटेड टू एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू वांट, दैट यू नीड. Examples are Google. Google is a search engine and a website. They all started as a website first of all. Facebook was itself a website. Flipkart, Naukri.com, अगर आपने उस पर कभी प्रोफाइल बनाई हो तो वो सबसे पहले उसने वेबसाइट से ही स्टार्ट किया था. ये एप्स वाला जो बिजनेस है उसके काफी टाइम बाद आया था. मेहनत सॉफ्टवेयर, आज तक, एंड यूट्यूब. The next is up is Zahar, can you just turn to the next slide? Static and website design. So now what is the difference between the two? एक स्टैटिक साइट वो होती है जिसमें सिंपल HTML होता है, एंड इसमें बेसिकली आपका ये वो पार्ट होता है जो एक यूजर को दिया जाता है एज अ लिंक और एनीथिंग, जो डिस्प्ले किया जाता है यूजर को. और डायनामिक वेबसाइट डिजाइन इज समथिंग जिसमें आप एंड सब कुछ आप एक तरह से बैकएंड पे चलता है. Zoya, can you just turn to the next slide, please? hello, ma'am. Yeah.
So, I just think, yeah. ओके मैम, अब हम डिफरेंस की बात करेंगे वेब डिजाइनर और एक वेबसाइट डेवलपर की। एक वेबसाइट डिजाइनर जो होता है, ही इज समवन जो बेसिकली he follows his passion. He is someone जो technically इस field में अपना career set नहीं करना चाहता और anything like that. He is someone who does जो अपने एक तरह से वेब डिजाइनिंग को या वेबसाइट डिजाइनिंग को एक अपना पार्ट टाइम या एज अपना पैशन को लेके चलता है, एज अ हॉबी और समथिंग, ठीक है। एंड ही इज द वन, ये वो होता है जो बेसिकली कैरी करता है अपना सारा स्टाफ और सब कुछ, नहीं कर पाता ये सारा कुछ इतना डिटेल में, इतना ज्यादा ही जस्ट मतलब उसको बहुत ज्यादा लाइटली लेता है, अपने प्रोफेशन के में इंक्लूड नहीं करता। एंड अ वेबसाइट डेवलपर जो होता है, इसमें जस्ट इट इज द फनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्टिकुलर पीपल। एंड एक वेबसाइट डेवलपर इज द पर्सन जो वेबसाइट को स्टार्टिंग से ही लेके चलता है, स्टार्टिंग से एक तरह से लेके चलता है दैट वो पूरा उस वेबसाइट को डेवलप करेगा, प्रोड्यूस करेगा, डिजाइन करेगा, ग्राफिक्स, कंटेंट, वो सारी चीजों का ध्यान रखेगा। एंड ही विल कंबाइन ऑल दोस फैक्टर्स एक साथ, और ही विल जस्ट टेक इट थ्रू, एक तरह से पूरा सारी चीजों को एक साथ पार्ट में लेकर फिर वेबसाइट को आगे बढ़ाएगा। एंड वेबसाइट डिजाइनर ये सब नहीं करता। वेबसाइट डिजाइनर बस उसको ऊपर ऊपर से या फिर जस्ट ही विल जस्ट टेक वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट टू नॉट दैट टू इन अ वेरी कैजुअल मैनर। सो नाउ दिस इज नाउ जब भी एक यूजर को एक्सपोज की जाती है कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट कभी भी, तो एक यूजर को जब भी आप एक्सपोज करते हो कोई भी वेबसाइट, तो उसको सिर्फ वेबसाइट का फ्रंट एंड देखता है, बिकॉज ऑब्वियसली उसका फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लिंक नहीं होता बैक एंड से, या उस वेबसाइट की क्या बैक स्टोरी रही है उसको इतना ज्यादा उसमें डीप में जाने का नहीं रहता, कोई भी यूजर नहीं जाता, आप में कोई भी नहीं जाता। सो फ्रंट एंड इन द सेंस, फ्रंट एंड एक तरह से डिस्प्ले हो गया पूरी की पूरी वेबसाइट का जो हम यूजर्स को दिखाना चाहते हैं। बैक एंड, फ्रंट एंड इज जस्ट द बेसिक थीम और द फ्रेम जिसमें भी एक पर्टिकुलर यूजर वेबसाइट को देखता है। बैक एंड जो वेबसाइट का पार्ट होता है, इट इज बेसिकली जो सब कुछ वेबसाइट को डेवलप करने में, वेबसाइट बनाने में, वेबसाइट का कंटेंट लाने में, और वेबसाइट की ग्रोथ, डिजिटल मार्केटिंग एंड उसको पूरा का पूरा अवेयरनेस फैलाने में वेबसाइट के बारे में। सो दैट इज द सपोर्ट सिस्टम ऑफ अ वेबसाइट व्हिच इज इंक्लूडेड इन बैक एंड। ऑब्वियसली फ्रंट एंड से ज्यादा बड़ा है बैक एंड का कॉन्सेप्ट, और इसका सपोर्ट भी ज्यादा है, एंड इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड इज डिपेंडेंट ऑन बैक एंड, बोथ ऑफ दीज थिंग्स साथ साथ चलती हैं, बट मेजर जो रोल प्ले करता है वो बैक एंड डेवलपमेंट करता है। सो फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस इंक्लूडेड होती हैं, द वेरी कॉमन लैंग्वेजेस जो आपने बहुत बार सुनी भी होंगी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड ऑल। एंड आपको अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो आपको जरूरी होता है कि आप मतलब आप जावास्क्रिप्ट भी डेवलपर भी बन सकते हैं, CSS, एंड दिस इज द वेरी बेसिक लेवल जहां पर आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए सोचते हैं। वाइल बैक एंड डेवलपमेंट के लिए आपको एक और भी फर्दर डिटेल लैंग्वेजेस करनी का कोर्स आपको मतलब पढ़नी पड़ती हैं या आपको सीखनी पड़ती हैं फॉर अ बैक एंड डेवलपमेंट। सो दिस इज इट बेसिकली। एंड आपको बाकी सारी जो डिटेल्स होंगी वो आपकी जैसे जैसे आप आगे अपनी क्लासेस अटेंड करेंगे तब आपको सारी कुछ सिखाई जाएंगी। दिस वाज बेसिकली जस्ट द इंट्रोडक्टरी क्लास, एंड बाकी हम आपने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है आपको सारा कुछ, टाइम शेड्यूल एंड कौन कौन सी किस किस लैंग्वेज की क्लास कब कब आपकी ली जाएंगी, कंडक्ट करी जाएंगी, ये भी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी स्टार्टिंग इज HTML, जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास से कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लास मॉड्यूल, आपके फर्स्ट वीक में हम आपका अपनी 3 to 4 क्लासेस में HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, एजाक्स एंड jQuery कवर करेंगे। सेकेंड वीक मतलब प्रोसेस यही रहेगा, रूटीन यही रहेगा, कोशिश की जाएगी कि यही रहे, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे कैसे क्लासेस किस किस टाइम पर कंडक्ट करी जा सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स। सेकेंडली, जस्ट इन केस इफ यू मिस एनी ऑफ द क्लासेस, जब भी ये क्लासेस हम कंडक्ट करेंगे, अगर आपकी बाई चांस आप कोई क्लास मिस कर देते हो तो आपके पास ये एडवांटेज रहेगी कि आप ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड का भी हमारे पास ऑप्शन है, हम रिकॉर्ड करके इनको अपलोड कर देंगे, आपको यूजर ID पासवर्ड बहुत जल्दी दे दिया जाएगा।
एंड आप वहाँ पर ये क्लासेस कभी भी देख सकते हैं दोबारा। अगर आपको कोई चीज रिवाइज करनी है तो भी आप ये चीज कभी देख सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली एक एडवांटेज है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत काफी आपको यूजर आईडी पासवर्ड भी प्रोवाइड कर देंगे हम। एंड सो एम हमारा यही रहेगा दैट हाँ 2 वीक्स में हम ये सारा पर्टिकुलर थिंग कोर्स खत्म कर दें। डिपेंड्स, बाकी डिपेंड करता है कि आप लोग का कॉलेज और एनीथिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग उसके अकॉर्डिंग जैसे भी शेड्यूल होता है। एंड दैट इज इट। एनीथिंग, आपको कोई क्वेरी कोई डाउट अगर पूछना हो तो, कुछ भी अगर आपको जानना हो या कुछ भी। मैम हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम ये HTML CSS बूटस्ट्रैप ये सब मैम 1 वीक में हो जाएगा क्या? हाँ इनफ रहेगा? कोशिश यही रहेगी, वैसे कोशिश यही रहेगी बिकॉज बाकी सारे जैसे जो स्टूडेंट्स होंगे इट शुड टेक नियर अबाउट अ वीक। मतलब 1 वीक से ज्यादा लगना तो नहीं चाहिए। बाकी डिपेंड्स अपॉन द ट्यूटर। तो ट्यूटर पे भी डिपेंड करता है, प्लस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं हम या कैसे पढ़ा रहे हैं। उस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपकी क्लासेस कितनी क्लासेस होती हैं वीक में। बाकी हमारा एम रहेगा कि आपकी 3 to 4 क्लासेस हर वीक हम कंडक्ट करें अराउंड 45 मिनट्स या 1 आवर में। तो आई गेस हो तो जाना चाहिए। पॉसिबिलिटी यही है हमारी एंड विल ट्राई टू कवर इट। और कुछ आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, एनीथिंग? वो 6 o'clock के बाद ही आएंगी ना? या क्लासेस आपकी 6 o'clock ऑनवर्ड्स या 6 to 8 के बीच में कभी भी हो सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि मैंने जैसे कि कहा डिपेंड करता है कि आपकी क्लासेस कैसे कैसे शेड्यूल होंगी। बट हाँ टाइमिंग यही रहेगा 6 o'clock ऑनवर्ड्स। संडे की जो क्लासेस आपकी ली जाएंगी उनके ऊपर आपका टाइम शायद अलग रहे, बट रेगुलर डेज में 6 to 8 रहेगा। सैटरडेज को कोई क्लास नहीं होगी। मैम जब भी क्लास रहेगा तो वो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ना? हाँ जी, क्लासेस जब भी रहेगा उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा? हाँ जी, जब भी क्लासेस आपकी कंडक्ट करी जाएंगी आपके पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाएगा एंड सारा कुछ आपको पहले से ही बता दिया जाएगा, या फिर आपको एक दिन प्रायर भी बता दिया जाएगा, और अगर किसी पर्टिकुलर दिन होगी तब भी बता दिया जाएगा। और जो और रिकॉर्डेड हाँ जी, वीडियो है आप कब शेयर करेंगे उसको? जैसे कि अभी वाली हमारी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, अभी हैंड टू हैंड अपलोड हो जाएगी। फिर जब हम आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। हैंड टू हैंड ही मोस्ट प्रॉब्लली हमारी कोशिश यही रहती है कि हैंड टू हैंड ही हम उसको अपलोड कर दे, चाहे कोई सी भी क्लास हो। आगे भी जो क्लासेस होंगी वो ऐसे ही अपलोड कर दी जाएंगी। तो हम ये जो डेमो क्लास है ये आप अभी अपलोड करेंगे क्या? हाँ जी, ये क्लास भी अभी अपलोड होगी, पूरी रिकॉर्डेड क्लास ये भी अपलोडेड होगी अभी। हाँ जी, और कुछ डाउट, कुछ क्वेरीज, कुछ पूछना हो अगर आपको रिगार्डिंग एनीथिंग? नो मैम। ओके, so is anything that आपको अगर कुछ बताना हो दिव्यांशु को या हमारे बाकी स्टूडेंट्स को, अगर आपको कुछ कन्वे करना हो तो? नहीं, I think that pretty much covers everything. So maybe like I said कि 2-3 जो बच्चों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हम आपको 1-2 दिन मतलब इनफ टाइम के साथ बता देंगे अगला क्लास कब होगा, एंड विद इन नेक्स्ट 10 days हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा लेट नहीं होगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। विद इन अ वीक हो जाएगा मोस्ट हाँ, प्रोबेबली, आई विद गेस इन अ 10 days वीक, भी नहीं लगेगा। एग्जैक्टली, मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक हो ही जाएगा बाय नेक्स्ट लाइक दिस टाइम ओनली। या सो एंड हम आपको एम्पल टाइम में बता देंगे, काफी टाइम में बता देंगे, तो ताकि आप लोग प्रिपेयर कर सको अपनी क्लास के एंड लिए। शेड्यूल ठीक अपना आप है, अकॉर्डिंगली दे हाँ, कर सके, जैसे भी आपको अपनी क्लासेस अटेंड करनी है जैसे भी है। एग्जैक्टली, सो दैट्स प्रीटी मच इट। एंड अगर ठीक है तो फिर मे बी आई डोंट नो, अगर किसी और को क्वेश्चन है, बिट्टू, मान्या, आपको कोई क्वेश्चन हो अलग से? नहीं, ओके, ठीक है। So we'll let you know about the next class. Yeah, is it okay, Ishita? We can end the session then. Yeah, you should Okay. end the session as for now. Yeah. So we're ending the session for now. We'll communicate to you through email and WhatsApp. Okay. Thank you.
Thank you for attending. Thank you so much. Okay. Yeah. Bye. Bye.